Good morning, students. We would be moving on to the next discussion on capital structure. In the last discussion, we have seen the capital requirement. Capital requirement it is for a short term or fixed capital requirement, working capital requirement, how it is get affected, how we decide that we need a working capital or do we need a fixed capital, and if we need working or fixed capital, from where we will collect it. Okay, so today is the next and the last point of our discussion: capital structure. Capital structure means what? On determining the amount of finance to be required and capital requirement, that is what working or fixed, the company need to decide the source of finance, planning from where to raise the finance. Okay, in the till the part which we have discussed, in that we have seen what is mean by corporate finance, why it is important to raise. After that we have seen how the finance we required, either in fixed form or in working capital format, right? After that we are going to discuss from where we will collect it, right? From where we are going to raise the finance. So once we have cleared with this term how much finance we need, how much finance means if मेरा पूरा एक प्लानिंग हो गया, बजट जिसको बोलते हैं, कि मैंने बजट फिक्स किया कि मेरे कंपनी को या फिर मेरे प्रोजेक्ट को, कोई प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है, तो फॉर दैट प्रोजेक्ट इफ़ आई नीड अ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख. सो ये तो डिसाइड हो गया कि कैपिटल 20 लाख लगने वाला है. तो एक मेरे पास एक आइडिया होगा कि ये जो कैपिटल मुझे चाहिए वो मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने वाला हूँ. सो फॉर परचेसिंग फिक्स एसेट आई नीड 15 लाख रुपीज़, एंड एज इन वर्किंग कैपिटल आई एम कीपिंग 5 लाख रुपीज़ विथ मी. ओके, तो एक ये पूरा डिस्कशन है. एक बार मैंने ये कंसिडर कर दिया कि हाउ मच फाइनेंस आई रिक्वायर्ड, सो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस वो कंसिडर होने के बाद मैंने ये देखा कि वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट द फाइनेंस, इन फिक्स और इन वर्किंग कैपिटल. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्लान फ्रॉम वेयर आई विल कलेक्ट द मनी. कहाँ से ये पैसे मैं कलेक्ट करूँगी? ऑब्वियसली मार्केट से मतलब कैपिटल और मनी मार्केट. हमारे पास दो सोर्सेस है. तो ये प्लानिंग होने के बाद जो पैसे हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मार्केट, उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. वाई? बिकॉज वी कलेक्ट इट either we borrow money or we invest our own funds. Okay, see, according to John Hampton, a firm's capital structure is the relation between debt and equity securities that makes up the firm financing of its asset. So according to this definition, the capital structure consists of two elements which are discussed below. वापस एक बार हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी. व्हाट इज मीन बाय डेब्ट? Debt means the borrowing. See, in simple words, debt means the loan. लोन तो आपको पता ही है. लोन you can easily know what is mean by loan. तो what is debt? Debt means आपने कितना कैपिटल दूसरों से बोरो करके कलेक्ट किया है. And what is mean by equity? Equity capital means the capital which is raised through by issuing equity shares. Okay, shares issue करके जो कैपिटल हमने इशू किया है. As you know, the shareholders are owners of company. So the equity capital is your owned capital, not the borrowed. Though you have borrowed it from the market, though you have borrowed it from shareholder, but shareholders are the owners of company. They are owner. So ओनर ने अगर खुद कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या हम उसे बोरोइंग्स कहते हैं? नहीं, इट इज़ द ओन कैपिटल ऑफ कंपनी, राइट. तो ये एक रिलेशन है कि कितने पैसे हम डेप्ट मतलब लोन से कलेक्ट करते हैं, बोरो करते हैं, और कितने पैसे हम खुद के लगाते हैं. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल, कि हाउ वी हैव डिजाइन द स्ट्रक्चर, राइट. सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओन्ड कैपिटल एंड दूसरा working capital, or borrowed capital. It is owned capital. It is capital invested by shareholders, means the owners of company. It is long term capital and remains in the business almost permanently. It is raised by issuing shares,
राइट. ये जो ओन्ड कैपिटल है, इट इज द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी. वंस यू हैव इशूड द शेयर्स, once you have issued the shares and once you have collected the capital by issuing shares, it remains permanently in the business. आपकी कंपनी जब तक है तब तक वो शेयर्स रहेंगे, राइट. आपकी कंपनी जब वाइंड अप होती है तब वो शेयर्स रीपे किए जाते हैं, तब तक वो शेयर्स आपकी कंपनी में, वो कैपिटल परमानेंटली रहता है टिल द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. ओके. So once you have issued the shares and once you have collected the money from shares, that capital remains in your business almost permanently, right? I hope you have understood what is own capital. After that, the borrowed capital. Borrowed capital means simply collecting the money from, as in form of loan, right? So it is also called a debt funds and taken for short or medium period. Interest at the fixed rate is paid on borrowing of money. ओके. बोरोड कैपिटल, हमने मार्केट से कैपिटल लिया है, कैपिटल बोरो किया है, इट इज़ अ डेप्ट. ये हमारा लोन है. लोन हम जब लेते हैं तो वो किसी फिक्स पीरियड के लिए रहता है. ओके. जैसे शेयर कैपिटल रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर परमानेंटली. देयर इज़ नो फिक्स पीरियड कि 10 साल के लिए रहेंगे, 15 साल के रहेंगे या कितने साल के लिए रहेंगे. नो, it stays in the business almost permanently. But the borrowed capital is taken on some fixed period for say 15 years, 12 years, 3 years, 2 years, 1 year, according to our need, right? So it is called as debt fund and it is taken for either for short period or medium period. To the borrowers, to the money lenders, we pay the फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर हमने बैंक से लोन लिया तो आपको पता है आप इंटरेस्ट पे करते हो, इतना तो आपको पता होगा. किसी से पैसे उधार लिए तो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, ये भी आपको पता होगा. तो जब भी आप पैसे इशू करते हो, मार्केट से लेते हो एज ए लोन, तो आपको उस पर इंटरेस्ट कंपलसरी पे करना होता है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द कैपिटल स्ट्रक्चर. इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर. इट डील्स विद द सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस. कहाँ से हम फाइनेंस रेज करेंगे, इससे डील करता है. तो फर्स्ट इज ओन कैपिटल, अगेन इज बोरोड कैपिटल. तो ओन कैपिटल रेज थ्रू इशूइंग शेयर्स इन द ओपन मार्केट. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी. ओन कैपिटल इज जनरली यूज्ड फॉर परचेसिंग फिक्स्ड एसेट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात डिस्कस की थी कि वंस वी हैव इशूड द शेयर्स, वंस वी हैव कलेक्टेड द मनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स, इट रिमेन्स इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, राइट. और हमने पीछे एक और डिस्कशन किया था अबाउट द फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट permanently. So machines, we are purchasing machines, if we are constructing the building, if we are taking the land for business, so everything that we have invested, the land we will use it for number of years. जब तक business करेंगे तब तक आप वही land use करेंगे, वही office building use करेंगे. So once we have invested in the fixed capital, it remains continuously permanently in the business. In the same way, उसी कैपिटल को, उन्हीं एसेट्स को लेने के लिए जो पैसा हमें चाहिए, वो हम क्या करते हैं, शेयर से कलेक्ट करते हैं. वाई इट इज सो, इसके पीछे जो लॉजिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक. अगर मैंने लोन लिया तो मुझे लोन मिल सकता है मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए, 20 ईयर्स के लिए, राइट. मैंने लोन लिया और वो लोन से मुझे एक एसेट खरीदनी थी, एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी थी जिसकी अमाउंट है से 25 लाख रुपए. सो आई हैव टेकन द लोन ऑफ 50 लाख रुपीज़. 50 लाख का मैंने लोन लिया और एसेट ली. अब लोन तो मुझे रीपे करना है 20 साल में, ओके. बट अगर यही पैसे मैंने शेयर होल्डर से लिए एज अ शेयर कैपिटल, तो ये तो पैसे मेरे बिजनेस में परमानेंटली रहने वाले हैं. क्या मुझे इनको 20 साल बाद रिटर्न करना है? नहीं करना है, राइट. तो इसीलिए फिक्स एसेट को परचेस करने के लिए वी टेक और कलेक्ट द मनी थ्रू मार्केट फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ओके.
नेक्स्ट इज बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल इज रेज फ्रॉम मार्केट टू फुलफिल शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट. सी, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट, इफ आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट मैक्सिमम 5 years के लिए मैक्सिमम 5 years के लिए चलने वाला है, राइट? सो आई वुड बी कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट इन मैक्सिमम 5 years. सो 5 साल के लिए क्या मैं मार्केट में से शेयर होल्डर से पैसे कलेक्ट करूँगी? नहीं. क्यों? वंस आई हैव कलेक्टेड द मनी फ्रॉम शेयर होल्डर, इट रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर परमानेंट पीरियड. सो मुझे वंस आई हैव कलेक्टेड द मनी फ्रॉम देम, आई नीड टू पे देम डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस. मुझे रेगुलरली उनको डिविडेंड हर साल पे करना पड़ेगा. वही अगर छोटे प्रोजेक्ट के लिए मैंने अगर लोन लिया 5 साल का, तो मुझे इंटरेस्ट सिर्फ 5 ही साल तो पे करना है. After completion of my project, the profit whichever I will get the profit, from that I will repay the interest and principal amount, right? So कोई छोटा प्रोजेक्ट है, मीडियम टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो जनरली business houses prefer to borrow the money from the market. What are the sources of own capital? Shares. आपको पता है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. What are the preference shares? In the next chapter we will going to discuss this part in detail. Right now आप इतना ही समझो कि जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं थोड़े बहुत डिफरेंस है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, बट both are the owners of company. Okay. Need to pay the dividend to the shareholders on profit. कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से डिविडेंड के तौर पे हमें उन पैसे शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं. वाई? बिकॉज सी, आपने पैसे दिए हैं कंपनी को, दो यूर ओनर, आप फ्री में दोगे पैसे? नहीं. आपके पैसे लेकर कंपनी बिजनेस कर रही है. आपके पैसे लेकर कंपनी जो द मनी विच द कंपनी कलेक्टेड फ्रॉम यू, फ्रॉम दैट मनी कंपनी इज डूइंग बिजनेस, कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. तो ये आपके पैसे, योर मनी इज इन्वेस्टेड और आपके पैसों से प्रॉफिट कमाया है. यू शुड गेट द शेयर ऑफ दैट प्रॉफिट, राइट? That is why company pays the dividend to the shareholders. After that, the next discussion would be on retained earnings. What is meant by retained earnings, and it is also part of own capital? See, yes, reserves and surplus from after making all the payments. देखिए, retained earning means what? In simple word, the savings of company. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट में से सारे पेमेंट्स कर दिए. Company paid the tax, company paid the dividend, company paid all the payments like salaries of worker, wages of worker, electricity bills, insurance premiums, everything. Company, whatever expenses company has, company paid that expenses, right? After payment of expenses, all the payments, company have some cash more. कंपनी के पास और भी मनी है, तो कंपनी ये सारे पैसे रिजर्व्स को ट्रांसफ़र कर देती है, मतलब सेविंग्स में ट्रांसफ़र कर देती है. एक आफ्टर सर्टन पीरियड इफ कंपनी नीड्स मनी फॉर एनी प्रोजेक्ट, तो ये सेविंग्स कंपनी यूज़ कर सकती है. जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि वो पैसे हर मंथ में जो भी एक्सपेंसेस है वो करने के बाद आपके पेरेंट्स कुछ पैसे बचाते हैं, और ये सारे सेविंग्स वो कभी ना कभी खर्च कर देते हैं, राइट? किस लिए खर्च कर देते हैं? किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए. ओके, फ्लैट खरीदना है तो उसके लिए खर्च कर देते हैं, कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए खर्च कर देते हैं, आपके एजुकेशन के लिए खर्च कर देते हैं. सो वॉट एवर, तो वो पैसे किसके हैं? कंपनी के ही तो, आपके पेरेंट्स के तो, मतलब आपके खुद के आपने कहीं से लाए हैं? नहीं. इन द सेम वे दिस आर द सेविंग्स ऑफ कंपनी, और सबका पेमेंट करने के बाद वो पैसे सेव किए हैं. सो नो बडी हैव राइट टू से दैट दिस इज आर मनी. नो, दिस इज द मनी, दिस इज द फंड्स ऑफ कंपनी ओनली, right? So this is the reserves. Reserves means the money we have reserved with us. Okay, surplus means the profit. So this money we can reinvest in the business. So this is called as a retained earning. It is also source of capital, fixed capital, and it is a free of cost. Why? Because shareholders को तो हमें dividend pay करना पड़ता है, हमें डिबेंचर होल्डर को या लोन लेने के बाद बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बट हमें रिटेन्ड अर्निंग तो अपने कंपनी के पैसे है, तो उस पर हमें कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट या डिविडेंड पे नहीं करना पड़ता. सो जितने रिटेन्ड अर्निंग आप यूज़ कर पाओगे आपके कंपनी में, इतना ही वी कैन से इट इज़ अ प्रॉफिटेबल फॉर कंपनी, राइट? नेक्स्ट इज द बोरोड कैपिटल. इसमें सोर्स क्या है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, ये जो स्टार किया है डिबेंचर्स, राइट? उसके बाद
बॉन्ड्स, उसके बाद डिपॉजिट्स, ये जो 3 है इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक. बट फिर अगर ये जनरल पब्लिक से कलेक्ट किए तो ये ओन कैपिटल में क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज़ द लोन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक. ये लोन के तौर पे लिए है, शेयर कैपिटल के तौर पे नहीं लिए है. हमने जनरल पब्लिक से लोन लिया है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. ओके, सो दिस all these money lenders, debenture holders are money lenders, they are creditors, bond holders are creditors, deposit holder are creditors, and the financial institution, other financial institution are like banks. Okay, तो ये जो banks हैं, that you can take the loan out from the banks also, so they are the financial institution which are paying you the money, right? So for debenture holders, the people or the from when we collect the money from the general public, we called it as a debenture holder. We give them debentures and they borrow, we can borrow the money from them. It is for a short period or specific period. In the same way bonds, in the same way deposits. When we borrow money from these people, we need to pay them a rate of interest at a fixed rate. Fixed rate मतलब देखिए, अगर हमने उनसे पैसे लिए तो हमें कंपलसरी उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. वी नीड टू पे देम इंटरेस्ट कंपलसरी. दो वी आर अर्निंग प्रॉफिट, दो वी आर गोइंग इनटू लॉस, डजंट मैटर. once we have taken the loan from them, we need to pay them interest at fixed rate every month or whatever the terms we have agreed. but आप प्रॉफिट अर्न करो, आपकी कंपनी लॉस में हो, इट डजेंट मैटर. ओके, वी नीड टू पे देम इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट. ओके, सो इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि वी पे देम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देम एज रिटर्न्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं, उनको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा. प्रॉफिट कम हुआ तो भी उनको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा. प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी उनको उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा. वैसे शेयर होल्डर्स का नहीं है. नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, राइट? So this is what the difference in own capital and borrowed capital. This is how we collect the capital. अगर प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओन कैपिटल. प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो क्यों परमानेंट पैसे कलेक्ट करना है? नहीं, वी विल बोरो सम मनी आउट ऑफ दिस सोर्सेस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट of capital structure. It is a very simple thing. So here it is the last part. It was the last part of our chapter. So here we have finished with the chapter. Let's have a look on the summary of this chapter. Okay, you please note down the summary of chapter I have given to you. हमने क्या क्या देखा? हमने पहले तो देखा what is mean by corporate finance, फिर इसके importance देखे. After that we have seen what is the capital requirement, वर्किंग और फिक्स्ड. उसके बाद हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी विल नीड फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, राइट? उसके बाद वी हैव सीन द कैपिटल स्ट्रक्चर. इन दैट वी हैव सीन डू वी नीड टू रेज द ओन फंड्स और वी नीड टू रेज द बोरोड मनी. सो दिस इज वॉट वी हैव सीन. ये हर एक कॉन्सेप्ट किसके साथ डील करता है, दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. सो दिस इज द समरी ऑफ चैप्टर. यू कैन से द की एरियाज विच यू हैव टू टेक इन टू द माइंड इज दिस थिंग्स. ये जो एरियाज हैं यहाँ पे कंपल्सरी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं और आ सकते हैं, राइट? सो प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. Solve the exercise of chapter so that whatever you have learned you can easily able to remember it. Do the practice at home, solve the exercise. It is compulsory to solve the exercise. So many questions, so many different types of questions given to you in the exercise. So please solve the exercise and note the summary down in your notebook.